Hello my dear students, today we will discuss exercise 7.2 chapter 7 cubes and cube roots class 8 mathematics. Okay, so in the previous video we already discussed exercise 7.1. In that one we will find given numbers are a perfect cube or not. Okay, so for that first we find out the prime factor of the given numbers, and after making a group of 3, okay, and on this basis we can say that given number is a perfect cube or not. If all the prime factors are comes in the group of 3, then the given numbers is a perfect cube. If any one of the factor is does not complete the group of 3, okay, or not complete in the group of 3, so it means that the given number is not a perfect cube. Okay, this is in exercise 7.1. But in this exercise we will discuss to find out the cube roots, okay, by prime factorization methods. You know very well prime factorization method. In chapter 6 we already discussed, we solved a lot of questions by this methods, and again we will use the prime factorization method in this exercise. Okay, so hope you understand very well how to get the prime factors of a given numbers. If you are unable to understand till now, so no problem, now you can understand. Again we will discuss, we will get the prime factors, okay, of the given numbers. Okay, so prime factors, getting a prime factors is a very important task. You have to learn these things, okay, by seeing videos once or twice. Okay, you can see or you can understand, okay, all the things regarding these chapters. And one important things I want to say you, if you want to study and if you want to clear your doubts and clear your concepts, please watch full video till end. So then I promise you will understand each and every questions. Otherwise I will not guarantee you. Yeah, okay, if you are not seeing the whole videos, I will not guarantee to you. Okay, let's start these questions. Okay, before starting these questions, एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो मैं आपसे गारंटी नहीं दे सकता. बस मेरा एक ही प्रॉमिस है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो पक्का आप पूरे क्वेश्चंस को समझ में आ जाएगा. ठीक है, और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और हम कमेंट के थ्रू या फिर आप जो है हम कैसे भी करके आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. फाइंड क्यूब रूट्स. क्यूब रूट्स हमको निकालना है. ठीक है ना, क्या करना है, हमें क्यूब रूट्स निकालना है. क्यूब रूट्स का मतलब तो समझ ही गए होंगे. ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हमें प्राइम फैक्टर निकालना है. तो 64 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम. तो 64 एक इवन नंबर है, तो हम इसको इवन नंबर से ही डिवाइड करेंगे. यहाँ ऑड नंबर होता है तो ऑड से शुरुआत करेंगे, यानी 3 से 5 से 7 से, और इवन है तो हमेशा 2 से ही डिवाइड देना है. इसके अलावा कोई दूसरे नंबर से आप डिवाइड नहीं दोगे. तो 2 से डिवाइड देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. अगेन 2 से डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. ओके, एंड अगेन 2 से 2 8 जा 16. फिर देंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2. तो प्राइम फैक्टर्स आप इस तरीके से, यानी कि ये एक तरह से प्राइम फैक्टर मतलब कुछ नहीं है, ये आप डिवाइड देके आप निकालते हो, है ना. यानी 64 में पहले 2 का डिवाइड दिया, 32 टाइम्स जाएगा, 32 में फिर 2 का डिवाइड दिया. इस तरीके से डिवाइड देके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं. क्लियर है. सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 64, है ना. 6 टाइम आया है ना, 1. ठीक है, ये 6 टाइम आया ना, देखो 3 और 3 6, तो हमारा ये 6 टाइम हो गया. अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हमने क्या किया था, जो चैप्टर नंबर 6 था ना, उसमें हमें स्क्वायर रूट निकाल रहे थे. तो स्क्वायर रूट को हम क्या कर रहे थे, 2 2 का पेयर बना रहे थे. स्क्वायर रूट जब भी आप निकालोगे तो 2 2 का पेयर बनाओगे, क्यूब रूट निकालोगे तो आप 3 3 का पेयर ग्रुप बनाओगे. समझ में आ गया. ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है. यहाँ पे हम ये जो प्राइम फैक्टर आए उनको 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, है ना. स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम 2 2 के ग्रुप में डिवाइड कर देते, यहाँ हम 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना. यहाँ पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की कि वो क्या करता है जल्दबाजी में, या जो है समझ नहीं आता उसको, वो 2 2 के ग्रुप बना देता है और क्यूब रूट्स निकाल लेता है. तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर. ये चीज ध्यान रखना है. आपको यहाँ 3 3 के ग्रुप बनाना है. कितने का ग्रुप बनाना है,
3 जो है ना फैक्टर्स के। तो ये देखिए एक ग्रुप, दो ग्रुप बन गए हमारे, ठीक है। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट्स निकालना है, समझ गए ना। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देयरफॉर अंडर रूट, यहाँ पे पावर 3 लगाना जरूरी है, ये अंडर रूट की पावर 3 लगाना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे ये 3 लगाना भूल गए तो ये 64 का स्क्वायर रूट माना जाएगा, समझ में आ गया। अब और मैं इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है इसका, ये इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, कितनी बार लिखना है हमें, 6 टाइम्स, है ना। कुछ नहीं, क्या है हमने वैल्यूज के ऊपर ये अंडर रूट लगा दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है ये देखो 3 का ग्रुप बना लिया हमने, है ना। अब मान लो मैं आपसे क्या बोलता हूं, पहला आपसे क्या गलती हो गई है, हो सकती है, मैं बता रहा हूं आपको। अब मान लो आपने यहाँ 3 लगाना भूल गए आप, है ना, ये 3 लगाना भूल गए। चैप्टर था हमारा, ये क्वेश्चन लिखा था कि फाइंड द क्यूब रूट्स, आपने प्राइम फैक्टर निकाले, सब कुछ किया आपने, इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो लिखा है अंडर रूट 64, ये क्यूब रूट ना मानते हुए स्क्वायर रूट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई पावर नहीं लगाई, और जब कोई पावर नहीं होती है तो हम उसको स्क्वायर रूट मानते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेगा। आप यहाँ 3 का ग्रुप बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये पावर 3 लगाना जरूरी है। आप ये पावर 3 लगाओगे तो वही इतने का ही ग्रुप बनेगा। यहाँ पावर कुछ नहीं होती तो 2 मानते हैं, तो 2 का पेयर बनाते हैं अंदर। पावर अभी 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे अंदर। पावर अगर 4 आ जाएगी तो 4 का पेयर बनाएंगे। पावर अगर 5 आ जाएगी तो 5 का ग्रुप बनाएंगे। तो जितनी पावर है यहाँ पे अंडर रूट की, उतनी नंबर का ही हम इसका ग्रुप बनाते हैं। और जब पावर कुछ नहीं होता तो हम उसको 2 मान के चलते हैं। सर अंडर रूट के अंदर जब कुछ नहीं होता है तो हम 2 मान के चलते हैं, तो हम 2 का पेयर बना देते हैं। चैप्टर 6 में अपन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्राइम फैक्टर से किए थे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो पेयर ग्रुप बना इसका 2 बाहर आ गया, ये जो ग्रुप बना इसका 2 बाहर आ गया, तो कितना आ गया ये 4। तो ये देखो 64 का जो क्यूब रूट्स है वो कितना आ गया, 4 आया ना। 64 का क्यूब रूट्स कितना आ गया 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप भी कुछ क्वेश्चन बना लगे। मैं और 2-1 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर आप ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम्स अगर आता है तो आप हमसे डिस्कस। हियर दिस थर्ड वन, सेकंड वन मैं स्किप कर दिया हूं। सेकंड वन 512 है, छोटा नंबर है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं 10648 का जो है ना क्यूब रूट्स निकालते हैं अपन इसका। तो इसका क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। और ये 10648 एक हमारा इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 में जाएगा 5 टाइम्स, 6 में जाएगा 3 टाइम्स, 4 में जाएगा 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। फिर से इवन आया 2 टाइम्स, यहाँ पे 16 है 12, फिर ये 6, फिर ये 2, फिर 2 से करेंगे 1 3 3 1। अब ये 2 से नहीं जाएगा, है ना, इवन ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर है ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 3 से आप डिवाइड करोगे नहीं होगा। ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड भी नहीं होगा, ये सीधा 11 से डिवाइड होगा। तो अगर आपको क्यूब्स और क्यूब रूट अगर याद है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। हमको याद है कि 1331 इज द क्यूब रूट ऑफ इज द क्यूब ऑफ 11। ये 11 का क्यूब है, तो हमें समझ में आ गया कि ये 11 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो क्या होगा, आप 2 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 5 से ट्राई करेंगे, 7 से ट्राई करेंगे। एक ट्राई करने में ही जो है आप 5 मिनट लगा दोगे। क्वेश्चन 2 मिनट का है, आपने ट्राई करने में 5 मिनट लगा दिए। तो इस तरीके से आपकी स्पीड जो है ना वो डाउन हो जाती है, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्जाम में, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स कम आएंगे तो परफॉर्मेंस डाउन हो गए। तो आपको आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट की जगह आपने लगा दिया 10 मिनट, तो बाकी का टाइम आप कवर कर नहीं पाते एग्जाम में। तो इसीलिए आपको कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताया था 30 तक के स्क्वायर्स, 30 तक के जो हमारे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स हैं, वैसे ही क्यूब्स और क्यूब रूट्स हैं। तो जितना आप हो सके याद करेंगे वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, आपके कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से फटाफट कर देता हूं। ये हमें पता है 11 से जाएगा, ये आ जाएगा 121, फिर 11 से जाएगा, ये आ जाएगा 11 और फिर 11 से जाएगा। आप चाहो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 10648 इज इक्वल टू 2 2 2 11 11 11। यहां पे अब देखेंगे तो ये आसानी से देखो 3 3 के जो है ना ग्रुप में आ गए हैं,
है ना, कोई भी फैक्टर जो है ना अनग्रुप्ड नहीं है, सारे के सारे 3 3 के ग्रुप में है, तो आसानी से हमारा इसका अपन निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे क्यूब रूट्स का साइन लगाना है, पावर 3 कंपलसरी है, 10648। इसके आगे हम फिर से ये साइन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 पावर जरूरी है लिखना, और जो वैल्यू आया यानी जो फैक्टर हमारे आए हैं एज इट इज हम उसको लिख देते हैं। यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे, तो ये देखिए ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप ये बना और ये 3, पावर 3 है तो हम 3 वैल्यूज को लेके ही ग्रुप बनाएंगे, ठीक। इसका ये 2 जो है निकल जाएगा बाहर, इसका 11 बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ गया ये 22। तो 10648 का क्यूब रूट्स कितना आ गया 22। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। इस तरीके से आप आसानी से क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अभी और क्वेश्चंस, 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, बाकी पार्ट्स इजी लगे हैं मेरे को तो आप कर लेंगे, मैं कुछ कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, है ना। हो सकता है आप जब सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। वैसे तो सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आसानी से बना लेंगे। चलिए अपन इसका करते हैं 110592, इसका अपन क्यूब रूट्स निकालते हैं। तो वही हमेशा की तरह प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अपन, 110592 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स, फिर 10, 5 यहाँ पे 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा 19 यानी कि 9 टाइम्स 18 6, ये आपको डिवाइड करना है, ध्यान देना है अच्छे से। फिर 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स 15 हो जाएगा, 7 टाइम्स 12 हो जाएगा, 6 टाइम्स 4 टाइम्स और 8 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे 1 टाइम्स 3 टाइम्स, 16 हो जाने से 8 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 6 टाइम्स, 18 होने से 9 टाइम्स 1 टाइम और 2 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 11 हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 12 हो जाएगा 6 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे तो 3 में 1 टाइम जाएगा, 14 हो जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स और 16 होने से 8 टाइम्स, है ना। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, क्योंकि सब इवन नंबर आ रहा है इसीलिए यहाँ पे 8 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 12 यानी कि 6 टाइम्स और ये 4। फिर ये 2 से करते हैं तो ये 4 3 2, है ना। फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 1 6, है ना, 2 1 6 आया ना। फिर 2 से करेंगे तो अपन ये आ जाएगा 108। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 54। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 27। फिर 2 से करेंगे तो अपना आ जाएगा 9, सॉरी 3 से करेंगे, है ना, लास्ट में। फिर 3 से करें तो ये आया 3 और बाद में भी 3 से करेंगे ये आएगा। तो लास्ट में आपके देखेंगे तो 3 3 आया है, बाकी सब 2 से ही डिवाइड हुआ है। तो बड़ा नंबर है, आप थोड़ा सा करके देख लेंगे, आसानी से बन जाएगा, बहुत इजी है, टफ नहीं है, ठीक। तो अब इसका अपन प्राइम फैक्टर लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 110592 कितनी टाइम्स है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 जो है वो 12 टाइम्स आया है। थोड़ा सा आप डाउन में भी लिख सकते हैं, आपके हमारे पास स्पेस नहीं है, आप सीधा लाइन भी लिख सकते हो। और 3 जो है ना वो 3 टाइम्स आया है ना। अब देखो यहाँ पे ग्रुप बनाओगे तो सबका 3 3 का ग्रुप आसानी से बन जाएगा। ये देखो 3 का ग्रुप बना, ये 3 का ग्रुप बना, ये 2 मिला के यहाँ पे एक 3 का ग्रुप बन जाएगा, है ना, और ये 3 का ग्रुप बना और ये 3 का, सबका ग्रुप बन जाएगा, है ना। अब अपन क्या करते हैं, देयरफॉर क्यूब रूट्स 110592, तो इसका क्यूब रूट्स जो है हम लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज को पूरा लिखेंगे अपन, ठीक है। देखिए लिख दिया हुआ है ना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये देखिए एक ग्रुप बना, ये 2 ग्रुप बने, ये 3 ग्रुप बने, ये 4 ग्रुप बने और ये 3 का ग्रुप बन गया। यानी कि आपका किस किस का ग्रुप बना है, 2 के 4 ग्रुप बने हैं और 3 का एक ग्रुप बना है। तो हम यहाँ पे 2 जो है ना 4 टाइम्स बाहर आ जाएगा और जो 3 वो है 1 टाइम आएगा, क्योंकि 3 का एक ही ग्रुप है ना, तो 1 टाइम आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ये 48। फिर से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48।
मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप जितना भी कैलकुलेशन है आप अपने से खुद से करेंगे तो आपका क्या है मिस्टेक नहीं होगा, है ना। कंसेप्ट आप समझिए अच्छे से और कैलकुलेशन आप खुद करिए। कैलकुलेशन को आप डायरेक्ट कॉपी करेंगे वीडियो से तो वो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि वीडियो पूरा एक बार देख लो, फिर वीडियो को बंद करके आप क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक लेकर सॉल्व करो। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा से उसको चेक करके देख सकते हो कि कहां आपकी मिस्टेक हो रही है। तो इस तरीके से क्या है आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जो लास्ट 9th पार्ट है ना, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये 9th वाला और बता देता हूं, ठीक है। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 175616 प्राइम फैक्टर, ये इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 17 में जाएगा 8 टाइम्स 16 या 15 हो जाएगा 7 टाइम्स, फिर 16 8 टाइम्स, 1 में नहीं जाएगा तो 0, 16 में जाएगा 8 टाइम्स। 2 से करेंगे हम पास तो 8 में जाएगा 4 टाइम्स, 3 में जाएगा है ना, 7 में 3 टाइम्स जाएगा 119 हो जाएगा, तो ये 9 टाइम्स, 0 एज इट इज, ये 4 टाइम। फिर 2 से करेंगे हम तो यहाँ पे 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, 19 होने से 9 टाइम, 10 हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। फिर 2 से करते हैं यहाँ पे तो 2 में जाएगा 1 टाइम, अब ये 1 बचा, 1 में नहीं जाएगा तो 0 ले लेंगे, 19 हो जाएगा तो 9 बार, या 15 हो जाएगा यानी 7 बार, 12 हो जाएगा यानी 6 बार। फिर 2 से करते हैं यानी 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स, 7 4 4। फिर 2 से करते हैं तो 1 3 7 2। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में जाएगा 6 टाइम्स, 17 हो जाएगा 8 टाइम्स और 6। फिर 2 से करेंगे तो 2 3, ये 4 और ये 3। अब ये जो है ना 343, इसको 3 से चेक करोगे तो 3 से जाएगा नहीं डिवाइड, ये हो जाएगा 7 से डिवाइड। किससे जाएगा अभी? 7 से, क्योंकि हमें पता है 343 7 का क्यूब होता है तो हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जाएगा 7 से, ये आ जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा, ये हो जाएगा 7, फिर अगेन 7 से ये 1 हो गया। इस तरीके से 2 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आया है। इसको हम लिख लेते हैं, ठीक। प्राइम फैक्टर ऑफ 175616 इज इक्वल टू 2 जो है 9 टाइम्स आया है तो अपन इसको लिख लेते हैं, और 7 जो है ना वो 3 टाइम्स आया है तो हम इसको डाउन में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, है ना। अब वही हमें अपन क्या करेंगे, देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 175616, ये हो जाएगा हमारा, ये पावर 3 9 टाइम्स लिख देते हैं इसको अपन, और ये 7 जो है ना वो 3 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका देखो ग्रुप बना के 3 3 का ग्रुप बनाना चाहिए हमको, तो 3 का ग्रुप बना, ये 3 का बना, ये 3 का बना और ये 3 का, सबका बन गया 3 3 का। तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका 3 बार 3 ग्रुप है, और ये 7 टू द 14, 14 टू द 28, 28 टू द 56। ये आ गया हमारा इस तरीके से आंसर, किसका? 175616 का क्यूब रूट्स आ गया 56। तो आप जो है आसानी से बना सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। और अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द ट्रू और फॉल्स, नथिंग एल्स। तो कुछ बेसिक चीजें भी इसमें हमें डिस्कस करेंगे, तो ध्यान देना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, यानी कि ये बोल रहे हैं कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब जो है इवन आ सकता है क्या? तो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ऑड नंबर का क्यूब लेते हैं, जैसे ऑड नंबर क्या है हमारा, ऑड नंबर हमने ले लिया 3, तो 3 का क्यूब आएगा 27। तो देखो 3 भी ऑड है और 27 भी ऑड है, तो एक ऑड नंबर का क्यूब ऑड आएगा और एक इवन नंबर का क्यूब इवन आएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, है ना। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। कोई भी परफेक्ट क्यूब है वो 2 zeros के साथ में एंड नहीं होगा, है ना, समझ गए ना।
यानी कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस, नहीं होता है। ये बात तो सच है ना, देखो नेगेटिव सेंटेंस है ना, ध्यान देना है, डज नॉट एंड, यानी कि कोई भी परफेक्ट क्यूब जैसे लेते हैं 10 का, मान लो 10 का हमारा क्यूब जो होता है वो कितना होगा हमारा 1000, तो उसमें कितने जीरो आ गए, 3 जीरोस आ जाएंगे। तो कोई भी 20 का क्यूब लोगे तो वो भी उसी हिसाब से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी परफेक्ट क्यूब में 2 जीरो नहीं होंगे, 3 होंगे या 5 होंगे, ऐसा टाइप का होगा। तो परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस, ये सही है, क्योंकि देखो नेगेटिव सेंटेंस पहले से ही दे दिया इन्होंने, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है ऑलरेडी, इसलिए ट्रू हो जाएगा। इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब इज एंड विथ 25। ये जो कह रहे हैं इसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि अगर एक नंबर का स्क्वायर जो है वो 5 में एंड होता है, एंड का मतलब लास्ट में 5 आ रहा है, तो उसी नंबर का क्यूब करने से 25 आना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो जैसे 15 है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो देखो 5 से एंड हो रहा है, सही है। अभी 15 का क्यूब करके देखो, है ना, तो 15 का क्यूब करते हैं। अब याद नहीं है तो हमें पता है 15 का मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। देखो 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 7 कैरी 3, 15 2 जा 30, 33, ये आ गया, है ना। तो इसके लास्ट में क्या है, लास्ट में 75 है, क्या है लास्ट में 75। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वो एंड होता है एंड विथ 5, और उसी नंबर का क्यूब करने से एंड हो रहा है 25 से। तो ऐसा नहीं है स्क्वायर करने से 5 से एंड हो रहा है, ये बात सच है, लेकिन उसी नंबर का क्यूब करने से 25 नहीं आ रहा है लास्ट में आ रहा है 75। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो, एंड का मतलब लास्ट में 8 आती हो, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं जिसके लास्ट में 8 आता हो। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना। और 12 का क्यूब करोगे ना तो वो भी लास्ट में 8 ही आएगा, जो भी नंबर होगा, लेकिन लास्ट में तो 8 ही आएगा ना। तो देखो ये तो बहुत सारे नंबर निकले, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये रॉन्ग है ना, स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्यूब नंबर में भी 3 डिजिट नंबर तो नहीं होता है ना। देखो 2 डिजिट नंबर कोई भी ले लो, हमने 10 ही ले लिया, तो 10 2 डिजिट नंबर है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ रहा है 1000। अगर 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आ रहा है 1331। तो ये कितने डिजिट नंबर आ रहा है, ये तो 4 डिजिट नंबर आ रहा है। कि देखो सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो भी 4 डिजिट आ रहा है, और ये क्या बोल रहे हैं, तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब करोगे, मे बी ये 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट तो हो ही नहीं सकता, कम से कम 4 डिजिट होगा, है ना, 4 डिजिट या इससे ज्यादा होगा, तो 4 डिजिट हमारा आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट वन, क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो इनका कहने का मतलब है कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो उसके क्यूब में 7 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कितना है 99। 99 का क्यूब करोगे तो जो इसका आंसर आएगा उसमें भी 6 डिजिट ही आते हैं, कितने आते हैं 6 डिजिट, है ना। 99 इज द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, इसका जब आप क्यूब निकालोगे तो उसके आंसर में 6 डिजिट होंगे, और ये क्या बोल रहे हैं कि मे हैव 7 और मोर, 7 और 7 से ज्यादा, तो 7 भी नहीं है, ये तो 6 डिजिट आ रहा है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी फॉल्स हो गया, 6th वाला भी। लास्ट वाला ध्यान दो, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। इनके हिसाब से क्या कहना है ये कि एक सिंगल डिजिट का क्यूब लेना है आपको, और उसका क्यूब जो आएगा वो भी सिंगल डिजिट आएगा, आ सकता है ऐसा। 1 का क्यूब देखो, 1 का क्यूब 1 ही आता है, 2 का क्यूब कितना आता है 8, तो देखो 1 भी सिंगल डिजिट नंबर, 2 भी सिंगल डिजिट, और इनके जो क्यूब किए वो भी सिंगल डिजिट नंबर, तो ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रू।
लास्ट वाला ट्रू हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स है, सेकंड वाला हमारा ट्रू है, थर्ड वाला हमारा फॉल्स है, फोर्थ वाला भी फॉल्स है, फिफ्थ वाला भी फॉल्स है, सिक्स्थ वाला फॉल्स है, लास्ट वाला हमारा ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आराम से बना सकते हैं, आप खुद भी इस चीज को प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज का भी लास्ट है और ये चैप्टर का भी लास्ट है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्यूब रूट्स निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है। फैक्टराइजेशन हमें करने थे विद ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन। हम बता रहे थे कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, या फिर उसका क्यूब रूट्स क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हमें समझना है, या फिर ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके एक शॉर्ट ट्रिक्स है। वैसे तो इस क्वेश्चन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में डाल चुका हूं, है ना। आप अगर देखेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स, है ना। क्यूब रूट्स के नाम से ये हमारा तो मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं अभी यहाँ पे भी इसको बता देता हूं, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि आपने क्या कहा कि 1331 है, ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। चलो मान लेते हैं परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज अ क्यूब रूट्स, व्हाट इज इट्स क्यूब रूट्स। क्या हम बगैर फैक्टराइजेशन किए 1331 का क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टर्स निकाले और सबका 33 का ग्रुप बनाए और जो है ना प्राइम फैक्टर्स निकाल के बता दिए कि क्या इसका क्यूब रूट्स है। लेकिन बगैर प्राइम फैक्टराइजेशन के बोल रहे हैं, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, बगैर यूज किए हम इसका क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। चलो मान लो ये तो आपको याद था, चलो बोल सकते हो कि 11 है। इसका क्यूब रूट क्या होगा बगैर फैक्टर किए, नहीं पता, तो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पूरा अच्छे से ध्यान लगा के समझ लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले हम इसके लिए कर रहे हैं ना, फॉर 1331, इसके लिए अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, 1331 के लिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, इज 1। इसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 है ना, ठीक है ना। देखो आपको बस ध्यान देना यूनिट प्लेस में क्या है, तो 1 मिल गया हमें। अब ये जो 1 मिला है इसका क्यूब करो, कितना क्या करना है इसका क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे कितना होता है 1 ही आएगा। तो ये जो आंसर आया है ये हमारा यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगा आंसर का। किसका हो जाएगा, ये हमारे आंसर के यूनिट प्लेस पर आएगा। ये जो 1 आया है ये 1 हमारा आंसर के यूनिट प्लेस पर आएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब ये तो यूनिट प्लेस डिजिट आ गया। अब आगे ध्यान दो, पीछे से 3 डिजिट छोड़ो, है ना, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो। ये 3 डिजिट हमने छोड़ दिया, क्या बचा हमारा 1 बचा। हम इसको फिर से समझ लेते हैं शुरू से, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो नंबर है वो क्या है हमारा 1331। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है बगैर फैक्टराइजेशन किए। तो हमने क्या किया, इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट लिया। क्या लिया, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट 1 है तो इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 1। तो इस 1 का क्यूब करेंगे, यानी जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी उसका क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, यहाँ पे भी एक ही डिजिट आया इत्तेफाक से। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो उनमें कुछ और आएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 1, तो ये जो आया है यहाँ पे ये हमारा आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट, यानी यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ आंसर। समझ गए, ये आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट होगा। अब टेंस प्लेस डिजिट ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ दो, ठीक है। क्या करना है आपको, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ देना है आपको। तो 3 डिजिट छोड़ने के बाद जो आपके पास नंबर बचा वो है आपका 1, ठीक है ना। 3 डिजिट छोड़ने के बाद जो भी नंबर बचेगा वो आप यहां पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो 1 आया, अब ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब इस नंबर से छोटा या इसके बराबर आए। ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब ये 1 से छोटा या 1 के बराबर आ जाए। तो हमें पता है कि 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो देखो 2 का क्यूब तो 1 से बड़ा हो रहा है, बात समझ में आई। तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, ध्यान दो, हियर क्यूब ऑफ 1 ये हमारा बराबर आ रहा है इसके, लेकिन ये जो वैल्यू बड़ा आ रहा है 2 का क्यूब जो है कितना आ रहा है, बड़ा आ रहा है।
2 का क्यूब हमारा ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, या तो छोटा वैल्यू या फिर उसके बराबर। तो यानी कि हम क्या ले लेंगे, ये 1 ले लेंगे। तो ये जो 1 आएगा ये हो जाएगा टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, है ना। तो अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो 1331 का क्यूब रूट्स बता रहे हैं ना बगैर फैक्टराइजेशन के, यूनिट प्लेस पे तो ये 1 आ जाएगा और टेंस प्लेस पे ये वाला 1 आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया, 11 हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद ना समझ में आए, अगले हम ये क्वेश्चन समझेंगे ना, इनमें और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा समझते हैं, तो चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट नंबर है हमारा क्या, 4913, ये नंबर है। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे बगैर फैक्टराइजेशन के, ठीक है ना। तो पहला यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट है 3, तो 3 का क्यूब निकालो। 3 का क्यूब आता है 27, क्या आ गया 27। तो आंसर का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो ये होगा 7, ये हो जाएगा यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ आंसर। ये आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट होगा 7। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 का क्यूब 1 ही आ रहा था, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें 3 का क्यूब कितना है, 27 होता है। तो 27 नहीं लेना है, आपको सिर्फ 7 लेना है। तो ये आंसर का सिंगल वन प्लेस डिजिट मिला। अब पीछे से 3 डिजिट छोड़ो, क्या करना है हमें, पीछे से 3 डिजिट छोड़ना है, ठीक है ना। तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ेंगे, तो ये हमने पीछे से 3 डिजिट छोड़ दिए, तो हमारे पास क्या बच गया 4। अब ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब 4 से छोटा आना चाहिए या इसके बराबर आए। तो देखो 1 का क्यूब आता है 1 और 2 का क्यूब आता है 8, तो ये फिर से बड़ा हो गया, बात समझ में आ गई। तो इन दोनों में नंबर कौन सा है, छोटा है ये वाला, तो हम 1 ले लेंगे, है ना। तो ये जो 1 है ये टेंस प्लेस डिजिट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये टेंस प्लेस डिजिट। ठीक, तो अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट किसका है 4913। टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, और यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है ना। यानी कि 4913 का क्यूब रूट कितना आ गया 17। ठीक, अब हम देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है 12167, 12167, इसको ध्यान दो अच्छे से। इसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 7 है ना, यूनिट प्लेस डिजिट 7 है। तो हम क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे, जो यूनिट प्लेस डिजिट होती है उसका क्यूब करते हैं। तो 7 का क्यूब करो, 7 का क्यूब होता है 343, इसके यूनिट प्लेस का जो वैल्यू है वो 3, ये हमारा आ जाएगा यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ आंसर। आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट मिल गया हमें, कितना आ गया 3 आ गया हमारा। अब पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो, तो ये पीछे से 3 डिजिट छोड़ दी, क्या बचा हमारे पास, यहां पे 12 बच गया। कितना बचेगा 12। अब ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब इससे छोटा आ जाए। तो जैसे देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो देखो ये तो बड़ा आ गया, तो इसको हम लेंगे नहीं। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 है वो कौन सा हो जाएगा हमारा टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम देयरफॉर करके लिख देते हैं, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 12167, इसके टेंस प्लेस पे क्या आएगा, टेंस प्लेस पे आएगा 2, है ना, और वंस प्लेस पे क्या आएगा 3, तो इसका आ गया 23। आप इन चीजों को वेरीफाई भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से क्रॉस चेक कर सकते हैं, यानी इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करो 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा लास्ट वन बचा है, उसको भी हम समझ लेते हैं।
ठीक है, तो अब देखिए लास्ट वन है हमारा 3 2 7 6 8। तो वही हमेशा की तरह यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 8 है, तो 8 का क्यूब करेंगे हम, है ना। तो 8 का क्यूब करते हैं, 8 का क्यूब कितना आता है 512। ये आपको याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद होंगे तो टाइम लगेगा। तो 512 इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, एक 2 आ गया। ये हमारा क्या बन गया, ये यूनिट प्लेस डिजिट बन गया, है ना, यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट मिल गया। अब पीछे से 3 डिजिट छोड़ो राइट साइड से, तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बचा 32। अब ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब 32 से छोटा या इसके बराबर आए। तो देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, हमारे पास है 32। तो 4 का क्यूब तो बड़ा हो गया इसीलिए 4 नहीं आएगा, और 1 2 3 ये सब छोटे हैं, तो इनमें से हम 3 को यूज करेंगे, यानी बड़ा नंबर यूज करते हैं। तो ये जो आया है ये हमारा टेंस प्लेस डिजिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये टेंस प्लेस डिजिट, किसका आंसर का। समझ गए, तो सिंपल सा लिख दो, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 क्या आ जाएगा, टेंस प्लेस पे क्या आएगा 3, टेंस प्लेस पे आएगा, वंस प्लेस पे क्या आएगा 2, तो ये हो गया 32। यानी कि 32,768 का क्यूब रूट्स कितना आ गया 32। तो हम ऐसे भी क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मेथड्स समझ में आ गई होगी तो आप जो है मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगेगा, आप क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। ये मेथड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो मेथड ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फिनिश हो गया है इस क्वेश्चन के साथ में। आपको अगर हमारा टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी स्टडी कर सके अपनी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।